students, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter The Adventure of Toto. This is chapter 2 of your book Moments of class 9. Let us read before we start the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Now, writer is asking that whether you have a pet or not, or especially a monkey as a pet. And a baby monkey, we are going to study about Toto. His name is Toto, and let us know by reading the chapter whether he is mischievous or not. Grandfather brought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though he had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. Now, grandfather हैं नैरेटर के, वो क्या लाए हैं, टोटो को ख़रीद के लाए हैं 5 रुपए में एक टांगा ड्राइवर से. Actually this is an interesting story about a monkey. एक monkey की कहानी है who was brought by the author's grandfather for his private zoo. उनके private zoo के लिए लाया गया था. Grandfather was an animal lover, बहुत जानवरों से उन्हें प्यार था. The author says his grandfather brought Toto from a tanga driver who used to keep this little red monkey tied up to the feeding trough. So वो बांध के रखता था इस रेड मंकी को. ग्रैंडफादर फेल्ट दैट ही लुक्ड आउट ऑफ प्लेस देयर. वहाँ वो सही नहीं लग रहा है, उसे सही जगह पहुँचाना चाहिए. देयर सो ही ब्रॉट हिम फॉर 5 रुपीज़, और इसीलिए उन्होंने टांगा ड्राइवर से उसे 5 रुपये में ख़रीद लिया था. ही डिसाइडेड टू कीप हिम इन हिज प्राइवेट जू. वो अपने प्राइवेट जू में उसको रखना चाहते थे. Toto was a pretty looking monkey. वो देखने में बहुत सुंदर था. He had bright eyes which sparkled with mischief. शैतानी से भरी हुई प्यारी प्यारी आँखें थीं all the time, and his teeth were pearly white when he smiled. pearly white मोतियों जैसे उसके दांत चमकते थे. The Anglo-Indian ladies were scared of this smile of his. Anglo-Indian ladies जो हैं उसकी इस स्माइल से डरती थीं. His hands looked dried as though they had been pickled in the sun for many years. उसके हाथ सबसे भद्दे थे. वो ऐसा लगता था कि सूख कर अचार बन गए हैं, सूखे हुए अचार हैं. But his fingers were
क्विक एंड विकेड, और हाथ तो सूखे हुए थे लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो बहुत क्विक और विकेड थी, चालाक थी, बहुत चालाकी भरी हुई फिंगर्स थी, हाथ बहुत तेज़ी से काम करते थे। एंड ही यूज्ड हिज टेल एज हिज थर्ड हैंड, जो उसके पास दो हाथ तो थे ही लेकिन उसकी पूँछ तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ही यूज इट टू हैंग फॉर एनी ब्रांच, वो किसी पेड़ से लटक जाता था पूँछ के सहारे। एंड वॉज ऑल्सो केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट ही कुड रीच आउट। डेलिकेसी का मतलब होता है कुक्ड फूड विच वॉज टेस्टी, तो जितना भी होता था वो खाना भी उस पूँछ के सहारे ले लेता था। होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल दिस पैराग्राफ. Let us go to the next paragraph. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept secret for her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Now, grandmother was not very happy with this type of thing, bringing pets in home. Grandmother was against of this. Grandmother को ये पसंद नहीं था कि ऐसे पेट्स उठा कर लाना, तो ग्रैंडमदर फंसी थी थोड़ा सा, वो इस बात पे गुस्सा होती थी, चिल्लाने लगती थी। तो ग्रैंडफादर और नैरेटर ने सोचा कि ग्रैंडमदर को इसका पता नहीं चलने दिया जाएगा, और शी हैड ऑलवेज क्रिएटेड अ फर्स्ट व्हेन एवर ग्रैंडफादर ब्रॉट अ बर्ड और एनी एनिमल होम। जब भी वो कुछ लाते थे वो चिल्लाने लगती थी। सो दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल कीप द सीक्रेट ऑफ टोटो टिल देन व्हेन शी इज़ इन गुड मूड। वो तभी बताएंगे उनको जब वो गुड मूड में होंगी, अच्छे मूड में होंगी, तब उन्हें बताएंगे। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडफादर केप्ट टोटो इन अ लिटिल क्लोसेट। क्लोसेट क्या होता है? एक कबर्ड टाइप का होता है, कबर्ड होता है, उसमें रखा ऑथर के बेडरूम में, जो नरेट कर रहा है नरेटर के बेडरूम में रखा। दे टाइड हिम सिक्योरली, बहुत सावधानी से, एक पेग जो कील लगी हुई थी उसमें, दीवार में लगी हुई कील से उसे बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which he had covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out of naked bricks and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. After some time, now narrator is saying कि थोड़ी देर बाद जब हम आए, when they came looking for Toto in order to release him, उसको छुड़ाने के लिए जब आए तो क्या देखा कि टोटो क्या करके बैठे हैं। They saw that Toto has ripped open the wallpaper. जितना भी सुंदर सुंदर पेपर्स लगे थे दीवार पे, उसको नोच डाला है और पूरा उसको नेकेट कर दिया। दीवार को मतलब ढकने के लिए उन्होंने पेपर्स लगाए थे, वो एकदम से हटा दिया गया है। वहाँ पे ब्रिक्स और प्लास्टर दिख रहे हैं, और जो दीवार में कील लगी हुई थी वो भी बाहर आ चुकी है सॉकेट से। और जो ऑथर का ब्लेज़र है, स्कूल ब्लेज़र है, वो उस पे वहाँ टंगा हुआ था, वो क्या हो गया है, टॉर्न इनटू श्रेड्स क्या होते हैं,
श्रेड्स होते हैं पीसेस, ओके, श्रेड्स होते हैं छोटे छोटे पीसेस में हो गया. हाउएवर ग्रैंडफादर डिड नॉट गेट अपसेट सीइंग ऑल दीज. ग्रैंडफादर को ये सारी चीज़ें देखकर बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, बल्कि वो उन्हें बड़ी खुशी हुई टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर. वो बहुत खुश हुए कि ये जो मंकी है ना, ये बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही कॉन्ट्ररी है, ये बहुत ही एक्टिव है. सो ग्रैंडफादर वॉज वेरी हैप्पी. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. Given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वो कहते हैं कि ये बहुत ही चालाक है और इसको अगर टाइम दिया गया होता तो ये अभी तक तुम्हारे ब्लेजर्स की रस्सी बना डाला होता और रस्सी बनाकर यहाँ से भाग गया होता. His presence in the house is still a secret. अभी भी उसका जो presence था घर में वो secret था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets live very sociably together. वहाँ पर बड़े से केज में इनको रख दिया गया था सर्वेंट्स क्वार्टर में, और वहाँ पर बहुत सारे पेट्स थे ग्रैंडफादर के जो बहुत ही आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे. अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम्ड स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. ये जो मंकी था ये इतना दुष्ट था, इतना पाजी था कि वो किसी को भी, ये जितने भी जानवर थे वो किसी को भी सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. सो ये जब रात भर उन्हें सोने नहीं देता था तो शोर और आवाज़ें आती थी, तो नेक्स्ट डे जो है ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर पेंशन लेने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि ये अगर यहाँ रहेगा तो परेशानी क्रिएट करेगा, इससे अच्छा मैं इसको अपने साथ ले जाऊँ. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. द नैरेटर इज सेइंग कि आई वॉज नॉट एबल टू अकम्पनी, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. और बाद में उन्होंने मुझे इस ट्रिप के बारे में एक एक बातें बता दी थी. अ बिग बैग कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो के लिए एक कैनवस बैग तैयार किया गया बड़ा सा, विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. उसमें कुछ स्ट्रॉ घास फूस रखे गए. बिकॉज हिज न्यू एबॉर्ड मतलब होता है घर, उसका घर बनाया, घर जैसा बना दिया गया. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप. और जब बैग बंद हो गया तो वहाँ भागने की कोई जगह नहीं थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. वो कैनवस खोल नहीं सकता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और कैनवस बहुत मजबूत था तो वो काट कर उसे फाड़ कर बाहर नहीं निकल सकता था. हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. वो उसका एफर्ट क्या, वो कोशिश करता था ये सारी चीज़ करने की, तो बस वो नज़र आती थी जब बैग को रोल करता था. वो बैग में गुलाटी मारता था तो बैग भी गोल गोल घूमता था, या ओकेजनली कभी कभार वो कूदता था तो बैग भी जंप करता था. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया लोगों के लिए. जब भी मतलब एक बैग जो कूद रहा है या रोल कर रहा है तो वो सभी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया प्लेटफॉर्म पे, देहरादून प्लेटफॉर्म पे. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर जब तक नहीं आया टोटो आराम से उस बैग में बैठा रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोसीडिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांसटाइल, Toto suddenly poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Now when he reached Saharanpur,
and he was going to be check out from the railway station. तो उस समय क्या हुआ, टोटो ने क्या किया, टोटो जो है वो अपने हाथ को उन्होंने निकाल लिया और उन्होंने एक बड़ी सी प्यारी सी ग्रिन स्माइल जो है वो किसको दी, जो टीटी होते हैं, टिकट कलेक्टर, उनको दी. टर्नस्टाइल, अ मशीन गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स. आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म्स पे या मेट्रो उसमें लगा रहता है, जब आप टिकट चेक हो जाता है तो आप उससे बाहर जा सकते हैं. तो टिकट कलेक्टर को देखते उसने वाइड ग्रिन का मतलब दांत निकालते हुए उसने हंस दिया. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. और टिकट कलेक्टर ने जैसे ही इस बंदर को देखा वो देख के डर गया और देख के एकदम से बहुत चक्का रह गया. बट विथ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. अब एक तो वो डरा हुआ था, ऊपर से उसने इतनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि वो ग्रैंडफादर को गुस्सा दिला दिया उसने, ये कह के कि सर आप कुत्ता लेके चल रहे हैं और इस कुत्ते की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quarter. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Now टिकट कलेक्टर जो है वो एकदम दृढ़ निश्चय हो गया था, वो बिल्कुल ऑर्डरप्ड ये हो गया था कि मतलब ये 4 लेगेड एनिमल ही है, ये कुत्ता है, ये बंदर नहीं है. ग्रैंडफादर ने उसे बैग से निकाल के दिखा दिया और तर्क करके बता दिया कि ये मंकी है, ये कुत्ता नहीं है, ये 4 पाया जानवर नहीं है, इसके 2 हाथ हैं, देखिए एक पूंछ है, हर चीज़ बताई उनको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं. ऑल was in vain. So grandfather has to pay 3 rupees for the penalty for the fare of Toto. Then grandfather, just to get his own back, took from our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा लग गई थी, तो उन्होंने अपने पॉकेट से छोटा सा टॉर्टोइज निकाला और उन्होंने टीटी से पूछा कि जब सारे ही जानवरों के लिए आप कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं तो इसके लिए बताइए कितना चार्ज करेंगे. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. टिकट कलेक्टर ने उसे बहुत ध्यान से देखा, उसको हाथ लगाकर उसको टच करके देखा और टच करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, ये मतलब कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता है. प्रोडेड मीन्स फेल्ट विथ हैंड, उसको उंगली से छू कर देखा और फिर कहा कि ये कुत्ता नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर को पता चल गया, ग्रैंडमदर ने एक्सेप्टेंस दे दी, ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको स्टेबल में, तबेले में घर दे दिया गया. वो वहाँ कंफर्टेबली रहने लगा. Where he had for a companion the family donkey नाना. वहाँ पर डोंकी रहता था जिसका नाम नाना था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. पहली रात जो है ग्रैंडफादर ने क्या किया, मतलब उसको स्टेबल में रखा, तो वहाँ जाकर सोचा कि लाओ देख लें कि मेरा जो बंदर है वो सही से है या नहीं है. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if
he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. Now, what happened after some time? Grandfather accepted the idea of keeping Toto. Grandmother accepted. He was then kept in the stable, as I have told you, कि उसको अस्तबल में रख दिया गया डोंकी के साथ, जिसका नाम नाना था. Was housed एक साथ रहने के लिए. On the first night, grandfather went to see हाउ इज़ टोटो, कैसा है टोटो, देखने गए तो वो बहुत चक्के से रह गए. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट नाना विदाउट एनी रीज़न वॉज पुलिंग. कोई रीज़न नहीं था, नाना बहुत तेज अपने आप को खींच रहा था हॉल्टर से. हॉल्टर क्या होता है? रोप. ओके, रोप से. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल. वो जो घास के बंडल थे उससे अपने आप को बहुत दूर रखने की कोशिश कर रहा था. ग्रैंडफादर गेव अ स्लैप टू द डोंकी. ग्रैंडफादर ने एक कस के जोर से डोंकी के थप्पड़ मारा. Grandfather gave Nana a slap across his haunches. Haunches मतलब back part of the body. Back part of the body and she jerked back. और वो एकदम से झटका खा के हिल गई. Dragging Toto with her. और खींचते हुए किसको लाई? ये टोटो. तो देखने मतलब तब सारी जो असलियत थी वो खुल गई. ही हैज़ फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प टीथ लिटिल टीथ. तो क्या हो गया था? ग्रैंडफादर गेव अ स्लैप टू द डोंकी विथ हर हॉन्चेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर. अपने साथ टोटो को भी ले आए. और फिर क्या हुआ? टोटो हैड फास्टेंड. टोटो ने उसे बांध रखा था ऑन टू द डोंकीज लॉन्ग ईयर. कानों से बांध रखा था विथ हिज शार्प टीथ. और दांतों में उसे फंसा रखा था. द टू कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स. और वो दोनों कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सके. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको दांतों से काटेगा, कोई मारेगा, तो आप उसके दोस्त बनेंगे. तो जानवरों में मतलब जानवर हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं बन पाए. इतना मिस्चीवियस था हमारा टोटो. अ ग्रेट ट्रीट for Toto during cold winter evening was large bowl of warm water given by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing. Now narrator is saying कि जो ग्रेट ट्रीट होता था, ट्रीट दिया जाता था, मतलब ट्रीट देते हैं ना हम लोग, खुश होते हैं, पार्टी मतलब कहीं पास होते हैं या कोई अच्छा चीज़ होता है, गुड न्यूज़ होती है, तो हम ट्रीट देते हैं अपने फ्रेंड को. तो टोटो की ट्रीट क्या होती थी विंटर्स में? बाथ, गर्म पानी से नहाना. और वो बिल्कुल नैरेटर को कॉपी करता था. जैसे जैसे नैरेटर करते थे वैसे वैसे वो भी करता था. पहले हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता था, उसके बाद अपना पैर डालता था, फिर धीरे धीरे उसमें बॉडी सिंक करता था. अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक. जब तक उसके गले तक पानी नहीं आ जाता था. वंस comfortable, he would take the soap in his hand or feet to rub himself all over. फिर जब वो comfortable हो जाता था तो वो साबुन उठाता था और फिर पूरी बॉडी में वो साबुन अपने रब करता था. Then the water become cold. He would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to get dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो उसमें से निकल के तेजी से भागकर किचन के पास, वो भट्टी के पास चला जाता था, आग की भट्टी के पास, जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए. इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with
his bath. अगर इस बीच कोई हंस देता था तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी, उसको वो दिल पे ले लेता था और फिर वो बात करने नहाने नहीं जाता था. One day टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो टोटो ने हद ही कर दी, वो खुद को गर्म पानी में उबाल ही डालता. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto find himself for nothing better to do decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little bit, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Now a large kitchen kettle was set to make tea. चाय बनाने के लिए सेट की गई थी और टोटो को लगा कि ये पानी जो है मेरे नहाने के लिए गर्म किया जा रहा है, तो उसने लिड हटाई और लिड हटाकर उसमें बैठ गया. और जैसे जैसे पानी उबलता जाता था तो वो कभी ऊपर आता था, कभी बाहर ज़्यादा ठंड थी तो फिर अंदर चला जाता था, फिर ऊपर आता था, फिर अंदर चला जाता था. ऐसे में ग्रैंड मदर ने आके देखा, और जब ग्रैंड मदर ने देखा तो वो चिल्लाई, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि ये तो उबल जाएगा. तो करीबन आधा उबला हुआ ये बंदर बाहर केटल से बाहर आया. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर कोई दिमाग डेवलप होता है, किसी का दिमाग कितना तेज होगा, स्पेशली डिवोटेड फॉर मिस्चीफ, शैतानी करने में, तो वो सच में टोटो का दिमाग ही डेवलप है. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और वो हर समय मतलब उसका काम ही यही था कि कोई भी चीज़ उसके हाथ में आए वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dresses and tear a hole in it. मेरी एक आंट मतलब आई थी और वो उनके कपड़ों के इतने नज़दीक जाना चला गया था कि जब तक मतलब उनके कपड़ों में उसने छेद कर दिया, जब तक उसने फाड़ नहीं दिया तब तक उसको शांति नहीं मिली. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate on her. वन डे लंच ये किया गया था, उसमें पुलाव था और डाइनिंग टेबल पे के सेंटर में रखा हुआ था. और हम लोग एंटर किए रूम में टू फाइंड आउट टोटो को देखने के लिए हम लोग आए कि फिलिंग अप वो खा रहा था. देखने आए तो जैसे ही हम लोग ने देखा कि वो अपने राइस खा रहा है तो ग्रैंड मदर चिल्लाई. तो टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर प्लेट फेंक के मारी. और वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक आंटी को गुस्सा आया तो वो आगे दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द फेस. बस टोटो ने उनके मुंह पर पानी फेंक के मार दिया. व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने पूरा जो डिश प्लेट था उसको उठाया और उठाकर खिड़की से बाहर भाग गया, विंडो के बाहर भाग गया. We found him on the branches of the jackfruit. कटहल के पेड़ पर वो जाकर बैठ गया. The dish is still in his arms. और जो डिश था वो अभी उसके हाथों में था. He remained there all afternoon. पूरे दोपहर वो वहाँ बैठा रहा और खाता रहा. Eating slowly through the rice, determined and finishing every grain, each and every grain. एक एक दाना बिन बिन के वो खाता रहा. And then in order to spite grandmother,
ग्रैंडमदर को इंसल्ट करने के लिए, स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वो चिल्लाई थी, इसलिए उसने क्या किया, ही थ्रू द ड्रेस डाउन ऑन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। चैटर्ड मतलब मेड आउट अ साउंड। उसने मतलब ग्रैंडमदर उस पर चिल्लाई थी, इसलिए इंसल्ट करने के लिए उसने जो बाउल थी, बोन चाइना की बाउल थी, उसको ऊपर से जैक फ्रूट के पेड़ के ऊपर से फेंका, वो चकनाचूर हो गई, उसके 100 टुकड़े हो गए। और जब उसके 100 टुकड़े हो गए तो ये बहुत खुशी से, जैसे बंदर चिचियाते हैं, मतलब चींची चींची करते हैं, वैसे ये चींची चींची करके खुश होने लगा। ही वॉज वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश हो गया था कि हमने ये काम किया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized. और इस इंसिडेंट के बाद ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ हो गया था कि टोटो को हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. इतनी जल्दी इतना सारा नुकसान, कभी कपड़े, कभी वॉलपेपर्स, कभी पर्दे, कभी ड्रेसेस, इतना नुकसान हम लोग बेयर नहीं कर सकते थे। तो सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। 5 रुपये में वो ख़रीद के लाए थे और उसको सिर्फ 3 रुपये में उसी टांगा ड्राइवर को ढूंढकर उन्होंने वापस बेच दिया। ये कहानी जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर हैं और इनकी लिखी हुई कहानी बहुत ह्यूमरस होती है, मज़ेदार होती है। जैसा कि अभी आपने टोटो के बारे में पढ़ा, टोटो की हरकतें देखी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ़ you have any problem, any query, you can write down in the comment box. Many chapters I have taught you children, so you can go through my channels and help yourself with the help of videos, and keep on liking and subscribing me, and meet you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.